This meeting is being recorded. Today we are going to discuss the sources of Hindu law. So, जब हम sources की बात करते हैं, so what is the idea? What are the sources of a particular law? ये law कहाँ से आता है? इसका base क्या है? Origin क्या है? So हम लोग आज बात कर रहे हैं हिंदू लॉ के origin की. ये कहाँ से आता है? ये किसने बताया है? और ये किन किन हमारे aspects को impact करता है? So basically पहले हम बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में. So Hindu law is the oldest and most extensive legal system in the entire world. और ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कि कुछ आइडियाज हैं, कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइफ्स को रेगुलेट करता है. सो बेसिकली हमें लॉ क्यों चाहिए होता है? विदाउट लॉ देयर विल बी नो बाउंड्रीज, देयर विल बी नो लिमिटेशंस, एंड इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, who will tell that this is wrong, this is right? ओके, सो बेसिकली एक सिविलाइज्ड लाइफ को रेगुलेट करने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत रहती है. और जब हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल लॉ. ओके, the other laws like IPC, CPC, CRPC, when we talk about all these laws, they are applicable upon everybody irrespective of their religion. But when we talk about the personal affairs of a person, especially we are talking about India. Okay, in India we have different personal laws. So to regulate the personal lives of a particular community, like now we are talking about the Hindu community, so unke liye there are their personal laws. For Muslims, their personal laws will be applicable to them. For Christians, they have separate laws. For Parsis and Jews, they have different laws. So basically, though we have certain uniform laws, personal laws also for everybody, irrespective of their religion, like Special Marriage Act, it is applicable upon everybody. Okay, but when we talk about a particular person of a particular religion, so there are their personal laws applicable to them. ओके, सो अब वो पर्सनल एस्पेक्ट्स कौन से हैं जिनको ये पर्सनल लॉज एप्लीकेबल रहते हैं? जैसे मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, हमारा ये हो गया, गार्डनशिप हो गया. तो ये सब जो है पर्सनल अफेयर्स, डिपेंड करता है कि कौन से रिलीजन से एक पर्सन बिलोंग करता है. तो उस तरह से उनके पर्सनल अफेयर्स जो है रेगुलेट होते हैं उनके पर्सनल लॉज से. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू लॉ. तो हिंदू लॉ का ओरिजिन कहाँ से आता है? ये कहाँ से चलते आ रहे हैं लॉज? ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये लॉज कहीं से आ गए और they started impacting our lives. Okay, so and they are not created by people जो कि जो जिनको पहले से ही पता था कि कुछ सिचुएशंस आने वाली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको डील कैसे किया जाएगा. सो ऐसा नहीं है. जब हिंदू लॉ का इवोल्यूशन हुआ, जब हिंदू लॉ बना, उस समय पे देयर वाज no such idea to regulate people's lives. The idea behind the evolution of the creation of Hindu law was to show people the path to find salvation. सो उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई सिविल क्रिमिनल लॉ बनाया गया या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था. उस समय पे सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको अपनी लाइफ कैसे जीना चाहिए है, बेसिकली मोरालिटी जो है एक एसेंस था हमारे एंशिएंट हिंदू लॉ का. धर्मा वाज द एसेंस ऑफ आवर एंशिएंट हिंदू लॉ. सो उस समय पे ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों के वेलफेयर के लिए दीज लॉज वर मेड. So जब हम बात करते हैं, so basically two types of sources of Hindu law are there. One is ancient sources and the other one is modern sources. Since I have told you that Hindu law is the oldest law ever created in the entire history of world. So ये हम बात करेंगे ancient sources की. ये आता कहाँ से, इसका first origin कहाँ से होता है? तो ancient sources में we will be talking about Shrutis, Smritis, customs, digests, and commentaries. So these sources of law refers to those laws which regulate the conduct of Hindus in the ancient time. Okay, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ancient sources हैं उनका आज कोई relevance ही नहीं है.
जो हमारे आज मॉडर्न सोर्सेज हैं या जो हमारे जितने भी कोडिफाइड लॉज हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन एंशिएंट सोर्सेज से डेफिनेटली है। हमारे जो बेसिक फाउंडेशन है, हमारा जो बेसिक नॉर्म है, वो वहीं से आता है, एंशिएंट सोर्सेज से ही आता है। Okay, so they are basically the guiding principles for our modern day legal system also. तो उनको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते एंशिएंट सोर्सेज को, दे आर स्टिल देयर विद अस इवन व्हेन वी हैव द कोडिफाइड लॉज। ओके, कोडिफाइड लॉज का मतलब जो वो लिखे गए हैं, एक पर्टिकुलर प्रोविजंस आर देयर एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड अपॉन एवरीबडी, दे आर एप्लीकेबल टू एवरीबडी। वो किसी भी जगह पे रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहता हो, those laws are applicable to those Hindus. Okay, so starting with the first ancient source, this is Shruti. So Shruti, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो सेजिस थे, उनको आकाशवाणी हुई या भगवान ने उनको बताया। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ रेवल्यूशन बाय गॉड टू आवर होली सेजेस। भगवान ने उनको आकर बताया, दिस लॉ वाज प्रोनाउंस्ड बाय डिवाइन गॉड एंड इट वाज हर्ड बाय आवर होली सेजेस, एंड उन्होंने वो नॉलेज जो है फर्दर पास ऑन की अपने गुरुओं, अपने शिष्यों को, प्रवचन के जरिए, स्टोरीज के जरिए, या डायरेक्ट जो भगवान ने उनको कहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो जो नॉलेज है वो पास ऑन होते गई धीरे 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 धीरे। और जैसे ही वो नॉलेज पास ऑन होती गई, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए है, किसी की मदद, कोई अगर मुसीबत में है उसकी मदद करनी चाहिए, बेसिकली सारा ड्यूटीज पे बेस्ड था, धर्मा पे बेस्ड था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गुड है क्या इविल है। तो वो धीरे धीरे लोगों के लिए लॉ बन गया कि ऐसा करना चाहिए तो वो लॉ है, ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए वो पाप है, वो सिन है। सो बेसिकली वो जो चीजें करना चाहिए वो लॉ की कैटेगरी में आ गई, ये हमारी ड्यूटीज हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो सिन की कैटेगरी में चला गया। तो इस तरह से उस समय पे ये चीजें लिखी नहीं गई थी कहीं पे। सो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही थी हमारे होली सेजेस से, फिर आगे इनके डिसाइपल्स के पास, फिर आगे उनके डिसाइपल्स के पास, इस तरह से। और जो हमारे श्रुतिज हैं उनको हम वेद के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हमारे 4 वेद हैं। चौथा वेद जो है वो बाद में ऐड ऑन हुआ था, पहले 3 ही मेन वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बाद में ऐड हुआ था। सो ये जो वेद हैं हमारे, ये हमें हमारी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, और हमें ऐसा बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हमारी हमारा जीवन का अर्थ क्या है, हम धरती पे क्यों आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो मोरल्स के बारे में बात करते हैं वेद जो है हमारे, हमें एक स्टैंडर्ड बताते हैं लाइफ जीने का, कि हमें लाइफ कैसे जीना चाहिए है। उस समय पे अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर वाज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिविल और क्रिमिनल लॉ, इट वाज प्योरली हमारी ड्यूटी क्या है। उस समय पे राइट्स की बात नहीं की जाती थी, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना है, और ऐसा क्या काम करना जिससे हमें सेल्वेशन मिले। सो बेसिकली हमारे वेदा जो है उनके बारे में बात करते हैं। सो जैसे मैंने आपको भी कहा कि ये धर्मा की बात करते हैं, वे ऑफ लिविंग की बात करते हैं, और कहीं पे भी वेदों में न्यूक्लियर फैमिलीज का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। वेदास ऑलवेज टॉक अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि सबको एक साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। और जो ये वेद हैं हमारे, कहीं ना कहीं राइट्स की बात तब करते हैं जब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो टूटती है, कहीं पार्टीशन है तो वो पार्टीशन कैसे होगा, किसी की डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट की जाएगी, किससे इनहेरिट की जाएगी, किसको मिलेगी, मैरिज कैसे होनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या हैं। अगर उस समय पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था बेटा होने पे, पुत्र होना चाहिए। अगर किसी को नेचुरली बेटा नहीं हो सकता है तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, तो अडॉप्शन के रूल्स उसमें दिए गए हैं। अगर किसी के माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसको कौन गार्ड करेगा, उनको तो गार्डियनशिप के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से जो भी डे टू डे लाइफ में इंसान की चलता है वो सारा कुछ जो है वेदों के जरिए बताया गया है। और उस समय पे जो है जो अभी हम जिनको हमने कास्ट बना दिया है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, उस समय पे कास्ट नहीं होते थे। ह्यूमंस को उनके काम के हिसाब से 4 वर्णों में बांटा गया था, जो जैसा काम कर सकता है।
तो ब्राह्मण्स, उनका काम था प्रीचिंग, उनका काम था टीचिंग, तो उनको वो काम दिया गया था। फिर क्षत्रिय आते हैं, ये वर्ण जो है काम के हिसाब से बनाए गए थे। क्षत्रिय आते हैं, देवर द प्रोटेक्टर्स, उनको वॉर में जाना है, वैश्य उनको व्यापार करना है, शूद्र उनको जो बाकी के काम बच जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है वो सारे काम शूद्र को करने हैं। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण सिस्टम जो कि पहले काम के हिसाब से बेस्ड था, वो धीरे धीरे कास्ट में तब्दील होते गए, डिटेरियोरेट होता गया सिस्टम, और वहां से जो है ये खराब होते गया। Theory of karma was also developed during the Vedic period. Karma says कि whosoever does whatever a person does will be rewarded, okay, as per his or her deeds. तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। आपने अच्छे काम किए हैं, आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे काम करते हो आपको बुरा फल मिलेगा। बेसिकली अगेन मॉरल्स आ जाते हैं। आपको एक मॉरल, आपको एक एथिक्स वाली लाइफ जीनी है, आपको मॉरल्स के साथ लाइफ जीनी है, तो ये लॉ है। तो यहाँ से हमारा जो है लॉ शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है लॉ का। तो लॉ आज भी हमारा लॉ वही बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हम बात करते हैं हमारे ऑफेंसेस की बात करते हैं आईपीसी में, तो ऑफेंसेस भी क्या बताते हैं कि अगर अगर ये गलत हुआ तो उसका ये पनिशमेंट है, उसका ये फाइन है। तो ये बेसिकली आता सबका सब जो है आता है हमारा एंशिएंट एरा से शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू स्मृति, अ सेकंड एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। स्मृति क्या है? ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है विच इज स्मृ एंड विच मीन्स टू रिमेम्बर। तो जो चीजें उस समय पे ऋषि मुनि बताना भूल गए, या आगे उन्होंने पास ऑन नहीं की नॉलेज, या फिर कहीं पे उनका मेंशन नहीं है, बट विच वर रिमेम्बर्ड बाय सेजेस, जो कि भगवान ने ओरिजिनली बताई और वो उनको याद रह गई। ओके, सो दे रोट डाउन दोज थिंग्स, दोज प्रीचिंग्स, जो भी उन्होंने, जो गाइडलाइंस भगवान ने उनको दी, वो उन्होंने अपने शब्दों में जब लिखा, उनको जो जो वो याद कर पाए, रिकलेक्ट कर पाए, जो उन्होंने वो याद रखा, तो दैट इज स्मृति। सो बेसिकली श्रुति क्या है? बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा भगवान ने कहा वैसा आगे पास ऑन हो गया, वो हो गया श्रुति। वो ओरिजिनल सोर्स है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी और इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी और इसके। लेकिन स्मृति जो है रहेगा दोनों में सेम, कि वो भी भगवान ने ही बताया है, दोज आर ऑल्सो वर्ड्स ऑफ गॉड, बट दोज वर रिमेम्बर्ड बाय सेजेस लेटर ऑन। तो कुछ कहीं कोई कमी रह गई हो सकती है, तो उन्होंने अपने शब्दों में उसको आगे बाद में लिखा। तो इसीलिए अगर दोनों में कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई डिस्प्यूट है, तो श्रुति विल सरपास स्मृति। सो श्रुति को इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू स्मृति। ओके, सो जो स्मृति के जो हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। सो बेसिकली आचार इज कैसा आपका आचार कैसा होना चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपको कैसी जिंदगी, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए है। सो ये सारे मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड है। तो ये आचार हो गया। व्यवहार, आप एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, बेसिकली राजा को क्या सा व्यवहार करना चाहिए है, उसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, वो सारे व्यवहार में आते हैं। प्रायश्चित इज पीनल प्रोविजंस, कि अगर कोई कुछ करता है, बेसिकली वो पाप की कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में फिर जब राजा को इन चीजों के बारे में डिसाइड करना है कि किसी ने क्या गलत किया, उसको क्या प्रायश्चित करवाना है, चाहे वो पनिशमेंट के जरिए है, चाहे वो फाइन के जरिए है, तो ये पीनल प्रोविजंस के बारे में बताता है स्मृति। देन जो हमारी स्मृतिज हैं, इनको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं धर्मसूत्र, फिर है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में बेसिक फर्क क्या है? धर्मसूत्र जो है वो प्रॉस फॉर्म में है, धर्मशास्त्र जो है वो पोइट्री की श्लोका की फॉर्म में है। धर्मसूत्र जो है ये बेसिकली दोनों बात वही करते हैं कि कैसा आचार होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमने श्रुतिज की बात करी, वहां पे सिर्फ मोरालिटी की बात हो रही है, वहां पे कहीं सिविल क्रिमिनल लॉ की बात नहीं हो रही है, कहीं एविडेंस की बात नहीं हो रही है, कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रूल्स की बात नहीं हो रही। लेकिन जैसे हम स्मृतिज में बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकलिटी क्या है? कि जब आप जीवन जीने लगते हैं, जब आपको राजा आपको रूल कर रहा है, तो राजा को वो सारी चीजें देखना भी है कि कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर कोई सही हो रहा है उसको रिवॉर्ड कैसे करना है, कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश कैसे करना है। अगर कोई केस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करने हैं, क्या चीजों को मानना है, क्या चीजों को नहीं मानना है। वो धीरे धीरे सिचुएशन जैसे आती गई, उस तरीके से हमारा लॉ डेवलप होता गया। ओके, तो धर्म सूत्रा जो है, इट टॉक्स अबाउट
the law concerning interpersonal relationships between people, state, then practical rules of caste, social, economic and religious relation. So ये जो धर्म सूत्र बने थे, इनके सूत्रकार कौन थे? गौतमा, बोधायना, अपस्तंभा, वशिष्ठा, विष्णु. So these are few of them. So ये exhaustive list नहीं है, इनके अलावा भी हैं, लेकिन those are prominent धर्म सूत्रकार. अब हम धर्म शास्त्र पे आते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चंस भी आता है जब भी कभी एग्जाम में आता है. तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. और कई बार मनुस्मृति पे अलग से क्वेश्चन आता है. सो देन और देयर कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड अपॉन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन श्रुतिज एंड स्मृतिज. सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द आंसर. ओके, सो दे आर इन फॉर्म ऑफ पोइट्री, जैसे मैंने बताया धर्मशास्त्र. सो वैसे तो धर्मशास्त्र जो हैं बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन इंडिया में 3 धर्मशास्त्रकार जो हैं जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू मिली है उनके काम की वजह से. मैं धीरे धीरे उस पर आऊंगी, उनके क्या काम था, उनमें क्या डिफरेंस आया, वो मैं धीरे धीरे उस पर आऊंगी. तो मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, ये 3 स्मृति जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इंडिया में इनको बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है. आज भी इनसे रिलेटेड लॉज अभी भी हैं जो हमारे मॉडर्न लाइफ में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडिफाइड लॉज. सो पहले हम आते हैं मनुस्मृति की तरफ. तो मनु वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ गिवर. लॉ तो हमारा एंशियंट एरा से चलता आ रहा है, लेकिन तब वो क्या था? मॉरल बेस्ड था और कहीं पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, इंटरप्रेट नहीं किया गया था प्रॉपर्ली. अगर कोई सिचुएशन आती है उसको डील कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था. लेकिन जब हम स्मृति के बारे में बातें, स्मृति, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में भी था. आई मीन संस्कृत में था बेसिकली वो, तो हर कोई नहीं समझ पाता था उनके बारे में, और बहुत सिंपल तरीके से नहीं लिखा गया था. वो वेद इस तरह से लिखे हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वही उनको इंटरप्रेट कर पाते थे. लेकिन जहां हम स्मृतिज की बात करते हैं तो मनुस्मृति एक ऐसी स्मृति थी जो कि उन्हीं सारे रूल्स का कलेक्शन है, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत क्लैरिटी के साथ उसको कंपोज किया गया है. और ये जो है, दिस इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ एंशिएंट हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस. रहेगा श्रुतिज और स्मृतिज का इंटरप्रिटेशन ही है सारा का सारा इसमें, और उसी ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉलो किया गया है, बट in a very simple language. And the compilation was so practical that it had replaced, log purani cheeze sab bhul gaye. They started accepting manusmriti as their law to be governed by that particular law. So ये law ने उनको govern करना शुरू किया. अब हम जब आगे बात करेंगे तब पता लगेगा कि बहुत सारे हमारे जो codified laws भी हैं वो भी मनुस्मृति से प्रभावित हैं, उनसे अफेक्ट हुए हैं. सो ये जो कोड था, मनुस्मृति थी, वो इतनी ज्यादा सिंपल, इतनी ज्यादा क्लियर थी कि इट वाज फॉलोड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक बर्मा, जावा, फिलीपींस ऑल्सो. मनुस्मृति जो है ये 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि 2694 वर्सेस हैं, एंड इट इज अगेन रिटन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, देन जब हम एक इनके मेन उसकी बात करते हैं कि मनु जो थे वो बेसिकली ही वाज अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट, आई विल नॉट से अगेंस्ट, ही वाज वेरी हार्श टुवर्ड्स वुमेन एंड शूद्रास. उनके हिसाब से जो एक स्त्री है उसकी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ही नहीं है. ओके, हर पर्सनैलिटी मर्जेस विद द पर्सनैलिटी ऑफ अ मेल ड्यूरिंग हर entire life and during different stages when she is in her childhood. Okay, her personality merges with the personality of her father. तो उनके जो फादर हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो फादर कहेंगे वही करना है. जैसे ही शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज she will be in the control of her husband. ओके, सो हस्बैंड उनको कंट्रोल करेंगे, उनके डोमिनेशन में रहेगी. जैसे ही वो एज उनकी बढ़ती है, हस्बैंड के बाद वो शी विल बी इन द कंट्रोल ऑफ हर सन. ओके, एक बहुत पॉपुलर श्लोक है मनुस्मृति का, ढोल शूद्र पशु और नारी सभी ताड़न के अधिकारी. तो जो मनु थे वो ये मानते थे कि जो ढोल है, जो जिसको हम बजाते हैं, जिससे आवाज आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोल, शूद्र, पशु
और नारी, ये चारों जो है इनको ताड़ के रखना चाहिए, इनको कंट्रोल में रखना चाहिए, और जरूरत पड़े तो इनको दे कैन बी बीटन ऑल्सो. Okay, so as per Manu, husband or wife, they are not only united for one lifetime, but their personality is so much into each other that this relation will go on till इनफाइनाइट लाइफ टाइम्स. इसीलिए विडो रीमैरिज को वो लोग जो मनु हैं वो कंसिडर करते ही नहीं, रिकग्नाइज करते ही नहीं हैं. दो हस्बैंड कुड रीमैरी, ओके, बिकॉज उस टाइम पे पोलीगमी चलती थी. पोलीगमी में हस्बैंड कैन हैव मोर देन वन वाइफ, सो हस्बैंड हैज दैट राइट to marry as many times he want to, and his remarriage can be was recognized. But because polyandry was not permitted by him, so wife could not remarry, so widow remarriage was not recognized by him. Again, I was saying ki husband had the complete control over the mind and body of the wife. Not only mind and body, but also the proprietary rights also were not given to the female. So even if she was earning, okay, she had her own self acquired property, she did not have that right to alienate that property. वो उस property को gift नहीं कर सकती, वो उस property को sell नहीं कर सकती, किसी को transfer नहीं कर सकती. She had no control. इनफैक्ट हमारे कोडिफाइड लॉ में पहले ये सिचुएशन थी कि जो फीमेल्स थी उनके पास कोई राइट नहीं था. दे कुड, अगर वो अडॉप्ट भी करना चाहती बच्चा तो, और इन केस आफ्टर शी हैज नो हस्बैंड विद हर, शी इज अ विडो, और उनको बेटा अडॉप्ट करना है, तो भी शी यूज्ड टू अडॉप्ट चाइल्ड इन द नेम ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड. ओके, वो अपने नाम पे अपने लिए बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती थी. मतलब हमारे कोडिफाइड लॉज भी जो हैं ये बात करते हैं. ओके, दे वर अमेंडेड लेटर ऑन, लेकिन जो ओरिजिनल कोडिफिकेशन है उसमें भी फीमेल्स, दे डिड नॉट हैव एनी प्रोप्राइटरी राइट्स, दे डिड नॉट हैव एनी राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. ओके, तो मनुस्मृति का इतना इम्पैक्ट था, इवन कोडिफाइड लॉज में भी उनका इम्पैक्ट नजर आता है. Okay, husband had the right to even beat the wife if the wife is somewhere doing anything wrong. Okay, तो एक तरह से जैसे वो गुरु शिष्य का रिश्ता है कि गुरु को कैसे भी करके बच्चे को ठीक रखना है, अगर गलती करता है तो पीट भी सकता है, तो वही काम जो है यहाँ पे हस्बैंड भी कर सकते हैं. ओके, उन मनु के हिसाब से कस्टम वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. ओके, और उनके हिसाब से जो राजा ने कह दिया, जो राजा कहेगा सबको वो माननी है चीज. उनके हिसाब से उन्होंने ही एम्फेसाइज्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ दंड, ओके, विच इज पनिशमेंट, जो कि जिसकी वजह से आप लॉ को प्रॉपरली इन्फोर्स कर सकते हो. हस्बैंड वाइफ को पीट सकता है, और जो राजा है वो अपनी प्रजा को दंड दे सकता है. तो इस तरह से जो जब हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ सैंक्शन बिहाइंड द लॉ, तो लॉ आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अलोंग विद द सैंक्शन, सो देयर शुड बी सम सैंक्शन बिहाइंड इट. ओके, कोई कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग जो है उस चीज को माने. ओके, तो इस तरह से मनु भी जो है दंड के बारे में ही हैड एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दंड. Then we come to the next Smriti, Yajnavalkya Smriti, which was more liberal than the Manu Smriti in terms of giving the proper status, the better status to females and Shudras. Okay, so it was written between the period of Buddha and Vikramaditya Singh. It actually recognized the rights to female, right and safety of women. It provided rights to female to inherit the property also. पहले तो मनुस्मृति में जब हम बात कर रहे हैं फीमेल के पास, even if she earned that property, she had no control over it. लेकिन यहाँ पे यज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे मैंने कहा कि it is liberal than the मनुस्मृति, तो उन्होंने यहाँ पे उनको, अगर उनके फादर की या हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उनकी डेथ के बाद, she was given that right to inherit the property also. ओके, सो जब हम यज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं, सो इसमें 1010 वर्सेस हैं जिनको कि 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. और वो जो 3 चैप्टर हैं, जैसे हमने जिनकी पहले बात करी, स्मृति मेन 3 चीजों से डील करता है, तो उन 3 चैप्टर्स में उन्होंने उनको बांटा है. पहला है आचार, कि कैसा आचार होना चाहिए. दूसरा है व्यवहार, जिसमें कि उन्होंने सिविल और क्रिमिनल लॉ की बात की है, एक सिविल कोड की बात की, क्रिमिनल कोड की बात की है. और
तीसरा है प्रायश्चित और कॉम्पनसेशन फॉर सिंस कमिटेड, जहां पे वो सारी की सारी पनिशमेंट्स की और फाइन्स की बात करते हैं. ओके, women was given the right to inherit the property, to hold the property, okay, by Yajnavalkya, in the Yajnavalkya Smriti. Okay, this Smriti deals with the documentary part also, कि अगर कोई दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है, जैसे हमने बताया कि आचार व्यवहार और प्रायश्चित की बात है, तो जहां पे हम लोग व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार में अगर दो लोग किसी चीज पे अग्री करते हैं, तो ही टॉक्स अबाउट पुटिंग दैट इन द डॉक्यूमेंट, not in the oral form, so that it becomes a proof later on. Okay, so he talks about the law of loan agreements, partnerships, business ventures, so how the documents are to be created to deal with all these aspects. So यज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे मैंने बोला कि धीरे 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 प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे हम उसकी तरफ आए. तो यज्ञवल्क्य स्मृति ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात करी, कि जब हम चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं उनकी बात करी. So this Smriti, it occupies a very very important position in the field of substantive, civil and criminal law. यहाँ पे इन्होंने substantive law की बात करी है यज्ञवल्क्य स्मृति. अब हम नारद स्मृति की तरफ आएंगे तो वहां पे वो procedural law की तरफ बढ़ जाएंगे. तो धीरे धीरे हमें इस तरह से सारे धीरे धीरे हमें लॉ मिलते चले गए. ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, तो लॉ कहाँ से आता है, ये ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होते गया और डेवलप होते गया. ओके, नाउ वी कम टू नारद स्मृति. जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति में उन्होंने सब्सटैंटिव लॉ की बात करी, अब यहाँ पे ये इनका मेन फोकस है प्रोसीजरल लॉ पे. ओके, इन्होंने सब्सटैंटिव लॉ के बारे में भी बात करी, लेकिन इनका मेन फोकस वाज ऑन प्रोसीजरल लॉ. सो दिस स्मृति बेसिकली डील्स विद forensic law, both substantive and procedural, with the reference to self punishment and other religious matters. सो इनके ये और ज्यादा लिबरल थे. इवन यज्ञवल्क्य स्मृति से भी कुछ और स्टेप आगे चले गए. यज्ञवल्क्य स्मृति तक तो एल्डेस्ट जो सन है, ही वाज द कर्ता, वो घर का मुखिया है, वो सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में डील करेगा, उनको पूरी फैमिली को कंट्रोल करना, वो कैसे चलेगी, उसका काम वो एल्डेस्ट सन का है. लेकिन यहाँ पर वो और ज्यादा लिबरल हो गए. उन्होंने यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात करते हैं, वो एज की बात नहीं करते कि जो एज में सबसे बड़ा है वही कर्ता हो सकता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा. इस स्मृति में बोला गया है इवन द यंगर सन कैन बिकम अ कर्ता ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली. उन्होंने इसकी बात करी. उन्होंने आगे जब पार्टीशन होता है, क्योंकि ये जितनी भी स्मृति हैं ये इन सारे हमारे पर्सनल अफेयर्स से डील करती हैं, तो अगर क्योंकि हर जगह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी टूटेगी नहीं, कभी पार्टीशन ही नहीं होगा. ओके, तो इन केस देयर इज अ पार्टीशन, द नारदा स्मृति सेज दैट father will take 2 shares in his self acquired property. Okay, then after the death of father, even mother gets the equal share along with her sons at the time of partition. Okay, और यहाँ पे उन्होंने अनमैरिड डॉटर को भी एक शेयर दिया है along with the younger sons. मैरिड डॉटर की बात नहीं की इन्होंने, अनमैरिड डॉटर की बात की है. जब पार्टीशन होगा, अगर फादर की डेथ होती है, इनहेरिटेंस की बात होती है, तो यहाँ पे डॉटर विल आल्सो गेट सम शेयर. ओके, सो ये स्मृति इन सब प्रोप्राइटरी राइट्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करता है. बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा, ये प्रोसीजरल लॉ से डील करता है. सो किस टाइप के प्रोसीजर्स कि प्लीडिंग्स कैसी होनी चाहिए, क्या आना चाहिए प्लीडिंग्स में, क्या नहीं आना चाहिए, जो हम आजकल सीपीसी में भी पढ़ते हैं कि कैसे जॉइंट प्लीडिंग्स हैं, इस तरह की हैं, तो कैसे कैसे प्लीडिंग्स होनी चाहिए, उनके रूल्स क्या होने चाहिए, उनके प्रोविजंस क्या होने चाहिए. फिर अगर कोई केस आता है, राजा के पास ही कोई केस आता है, तो कैसे एविडेंसेस को जो किंग है ही विल एडमिट, और कौन से एविडेंसेस को ही विल नॉट एडमिट. ओके, उसमें कौन से ओरल एविडेंसेस को इंपॉर्टेंस मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. ओके, इन सब चीजों के बारे में जो है नारद स्मृति में बहुत क्लियरली बताया गया है. इट कंटेन्स 3 introductory chapters on the principles of judicial procedures and on judicial assembly. Okay, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आज का जो लॉ है इस तरह से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और आज हमें इस शेप में ये मिला है. ओके, सो रिगार्डिंग लॉ ऑफ मैरिज, he was very much in favor of widow remarriage. Okay, उन्होंने मेजॉरिटी एज फिक्स की थी 16. Okay, then we come to the third ancient source of Hindu law, which is commentaries and digests.
अब जैसा कि हमने पहले बात की है श्रुतिज की, स्मृतिज की, और इवन अमंगस्ट स्मृतिज ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। मनु ने कुछ और कहा है, यज्ञवल्क्य ने कुछ और कहा है, नारद स्मृति में कुछ और कहा गया है, श्रुतिज में और अलग बात की गई है। तो जहां कहीं भी श्रुतिज और स्मृतिज में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कहीं कोई कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और जो आज की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अगर सोल्यूशन ढूंढना है, तो बेसिकली कमेंट्रीज ने क्या काम किया है, उन सारे हमारे पुराने श्रुतिज और स्मृतिज को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सके। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, श्रुतिज कुछ और कह रही है, मनुस्मृति कुछ और कह रहा है, यज्ञवल्क्य स्मृति में कुछ और कहा गया है। जैसे विडो मैरिज की बात की, मनुस्मृति इज अगेंस्ट द विडो मैरिज, यज्ञवल्क्य स्मृति सेज ओके इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, विडो कैन रीमैरी। ओके, अब ये सारी जहां कंफ्यूजन आती हैं, जहां कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, तो उनको आज के जमाने में जब कमेंट्रीज लिखी गई उस समय पे लोगों का की क्या सोच है, उन सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, उनको सूट करती हुई जो इंटरप्रिटेशंस जो बनाई गई, वो सारी जो हैं कमेंट्रीज हैं। ओके, तो उन्होंने कमेंट्रीज भी अगेन दे आर द इंटरप्रिटेशंस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ चेंज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने श्रुतिज चेंज कर दी या स्मृति चेंज कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनको उनका इंटरप्रिटेशन लाया है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज टू सूट दी दैट द नीड ऑफ दैट टाइम ऑफ सोसाइटी। ओके, सो बेसिकली ये हम आज भी करते हैं, ये हम आज भी करते हैं। इवन व्हेन वी हैव द कोडिफाइड लॉ, okay, even when we do not have any confusion sometimes, okay, but then to suit that particular need of the time, the interpretations हैं